today we are going to start now a new topic, and that topic is developing reading skills in students. I hope most of you have already joined, and with your permission, I'm starting this session. So today's online session topic is developing reading skills in students. Now, just I need your permission to share my screen so that we can directly dive into the topic. Okay. Fine. So I'm sharing my PPT. I hope it is visible to all of you. You can comment in the chat box if the PPT is visible or not. So my dear friends, this is a very, very important topic because we are all teachers. And being teachers, we need to understand this, that we have to develop reading skills in students. If we don't develop reading skills in students, then you know what will happen? They will never develop the habit of self-study. When you teach anything in the class, then I think as a teacher, all of you expect कि बच्चा घर जाए, घर जाकर पढ़े, उसको रिवाइज करे, होमवर्क बनाए, क्वेश्चन आंसर्स करे, फिल इन द ब्लैंक्स करे, व्हाटएवर, प्रोजेक्ट करे, एक्टिविटी करे, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो वो करके लाए. तो अब आप ये बताइए टीचर्स कि अगर हमारे बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल्स ही नहीं है, अगर हमारा बच्चा घर जाके किताब पढ़ेगा ही नहीं, पेपर को पढ़ेगा ही नहीं, तो फिर हमारा बच्चा कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले दिन वो क्लास में कुछ तैयारी करके आएगा. तो आपने जो कुछ भी उसका पिछले दिन पढ़ाया, उसका रिविजन, उसका रिकैपिचुलेशन, उससे रिलेटेड कोई भी वर्क मेरा बच्चा नहीं करेगा. फिर अगर हम और लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ सोचेंगे, तो जब हमारा बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है तो भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मेरा बच्चा कुछ पढ़े, किसी कंपटीशन की तैयारी करे, कोई कंपटीशन को क्रैक करे. तो क्या आप ये समझते हैं कि जितना आप क्लास में पढ़ाने से उतना याद रखने से ऐसा हो जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल. द चाइल्ड नीड्स टू रीड ऑन हिज और हर ओन. The child has to read. The child has to read new books. The child has to read unread books. The child has to read from so many things in life, maybe from books or maybe from e-books or maybe from libraries, maybe from course book, maybe from magazines, whatever. So as a teacher, I'm sure you all want your children to have great reading skills. And for having these great reading skills, you have to develop certain things in the students. So today our topic is related to developing reading skills in students. Now how to do that? We are going to study this today. So please pay attention. Please try to understand some fantastic tips and tricks I'm going to give you today to develop reading skills. Now very beautiful quote. This is a very beautiful quote. You can read it yourself. This quote says, "You could be the most eloquent teacher, the best strategy group facilitator, the most insightful conferrer. But if you send your kids back for independent reading and then don't read, then they won't make progress you are hoping and working for." Do you all agree with this? If the child doesn't become an independent reader, then the child will never make progress, never ever make progress that we are expecting in the child. So this is very, very important. Okay. So please try to understand this. Now, the child says, ये बच्चा है जो कह रहा है, I don't want to read. मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ. सारे बच्चे ऐसे ही कहते हैं क्या? Most of them. सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से पढ़ते हैं. स्टोरी बुक्स भी बहुत सारे पढ़ते हैं, कोर्स बुक को भी पढ़ते हैं, इधर उधर से भी पढ़ते हैं. They're interested in reading. लेकिन most of the children in our class, 90% of the students in the class, उनको अगर reading के लिए आप कहेंगे तो उनको लगेगा कि this is very boring, this is not good, I don't want to read. Okay. Now, why our students are not reading? Why our students are not reading? They are not reading, number one. Why they don't want to read? Why they are not reading? There are many reasons to it. आप देख लो आपके बच्चों के केस में कौन सा रीजन सही है. अगर आप रीजन को थोड़ा चेंज कर देंगे, पलट देंगे, तो हो सकता है बच्चे इंटरेस्ट शो करें रीडिंग में. लेकिन आपका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा बच्चा क्लास में पढ़ना क्यों नहीं चाहता. सो पहला रीजन है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग. उनको पता ही नहीं है कि रीडिंग के फायदे क्या होते हैं. they are exposed to insufficient good books. उन्हें लगता है रीडिंग मतलब कोर्स बुक पढ़ो फिर से. अरे यार कौन पढ़ता है कोर्स बुक? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द सेम हिस्ट्री, सेम पॉलिटिकल साइंस, सेम ज्योग्राफी बुक, सेम साइंस बुक
रीड समथिंग इंटरेस्टिंग। मे बी किसी को बहुत पिक्चर बुक रीड करने का मन है, किसी को मैगजीन्स रीड करने में मन लगता है, किसी को कार्टून्स रीड करने में मन लगता है। दे वांट समथिंग डिफरेंट एंड वो उनको नहीं मिलता, इसलिए शायद वो नहीं पढ़ना चाहते। नेक्स्ट इज फैमिली बैकग्राउंड। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो खाने पर, चाउमीन पर, चिली चिकन पर और मॉडर्न लोग में जाकर बहुत पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन जहां तक सवाल होता है रीडिंग का, तो वो किताब खरीद के बच्चे को एक्स्ट्रा नहीं देंगे। वो कहेंगे अभी तो 10,000 की किताब खरीदी थी तुम्हारे स्कूल के लिए, फिर किताब क्या करोगे? दिस मे बी द एटीट्यूड। मे बी घर में कोई रीडिंग करता ही नहीं है, इसलिए बच्चे के अंदर वो एटीट्यूड डेवलप ही नहीं हुआ रीडिंग करने का। देन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कंप्लेन दैट दे हैव नो टाइम टू रीड। एग्जाम ओरिएंटेड हो गया पूरा लाइफ हमारा। अभी नया सेशन शुरू होगा तो PT1 होगा, फिर PT2, फिर FA, फिर ये, फिर वो, तो हमारे पास एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की फुर्सत कब? अगर स्कूल कहता भी है कि लाइब्रेरी से किताब इशू कर लो, इसको पढ़ लो, कोई एक्स्ट्रा नॉवल पढ़ लो, तो बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा कब, उसके पास तो समय नहीं, उसके तो इतनी सारे एग्जाम्स हैं। सो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ना एग्जाम ओरिएंटेड हो गया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा रीडिंग की आदतें बहुत कम हुई। Then some of them have language problems. Maybe they are issuing books from the library, but they're not able to read because they don't understand. और जब उनको भाषा नहीं समझ में आती तो उनको मजा नहीं आता। No motivation or encouragement. अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा है जो हर वीक लाइब्रेरी से किताब इशू करता पढ़ता है, क्या आप उसको कुछ स्पेशली इंकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, सर्टिफिकेट देते हैं ना कि भाई ही इज द बेस्ट रीडर ऑफ द स्कूल, बेस्ट रीडर ऑफ द क्लास? नॉट अवेयर ऑफ द बुक्स अवेलेबल। और बहुत सारे स्कूल्स में तो फुल्ली फंक्शनल लाइब्रेरीज भी नहीं होते हैं। सच्ची बात है या नहीं? बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं, स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें इंटरेस्टिंग बुक्स है ही नहीं हमारी लाइब्रेरी, तो बच्चे को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रियल रीडिंग एंड नॉट रियल रीडिंग? बहुत सारे स्कूल्स की लाइब्रेरीज में मैं जाती हूँ, मैं कभी कभी अपनी लाइब्रेरी में भी जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ बच्चे ने एक किताब खोल रखा है और सामने उसकी किताब है और टीचर समझ रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन क्या वाकई बच्चा की पढ़ाई हो रही है? Is the child really reading? क्या कहेंगे आप? What will you say? So आपको ये समझना होगा कि बच्चों के लिए राइट बुक्स को पिकअप करना बहुत जरूरी है। कोई भी किताब उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है कि वो मुझे फैसिनेट करे वो किताब। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। Until and unless you are a voracious reader, you cannot do that. और ये केस जनरली हमारे साथ नहीं होता है, हम उतने voracious readers नहीं होते हैं। सो हम कोई भी किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और अगर हम सच में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम पहले सही किताब चुनेंगे फिर पढ़ेंगे। थिंग्स व्हाइल रीडिंग। देखिए रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। रीडिंग डज नॉट मीन ओनली लाइन बाय लाइन रीडिंग। जैसे मान लीजिए मुझे रीडिंग करनी है तो मैं कह रही हूँ पिक्स द राइट बुक्स, थिंग्स व्हाइल रीडिंग, स्टेज इन वन स्पॉट, फिनिशेस वर्क। ये रीडिंग नहीं। रीडिंग का मतलब क्या है? पिक्स द राइट बुक्स। जब मैं पढ़ रही हूँ पिक्स द राइट बुक्स, तो मुझे पिक्स द राइट बुक्स का मतलब भी समझ में आना चाहिए। आई शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स व्हाइल रीडिंग। रीडिंग करते वक्त तो सोचता है। स्टेज इन वन स्पॉट, एक जगह रहकर पढ़ता है, लेकिन घूम रहा है, इसका मतलब पढ़ाई में उसको मन नहीं लग रहा है। He makes connections। अच्छा अभी राजा के पास तलवार थी, फिर राजा की तलवार किसी ने ले ली, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? राजा के हाथ से तलवार चली गई, राजा निशस्त्र हो गया। ही वो थिंक करता है, कनेक्शंस बनाता है और वो अच्छे से उस काम को पूरा करना चाहता है। तो सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि अगर बच्चे के सामने किताब खुला है, इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहा है। इट्स नॉट वेरी एसेंशियल। द चाइल्ड मे नॉट बी एक्चुअली रीडिंग। आपको बहुत तकलीफ होगी टीचर्स ये सर्वे का रिजल्ट देखकर, जो 2017 में दिस सर्वे वाज डन, एंड इसी सर्वे पर एक्चुअली हमारा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का पूरा सिलेबस बना है। ये सर्वे कहती है कि 1 out of 3 children in grade 3 cannot read simple text। ये हिंदी में है क्योंकि ये सरकारी सर्वे है। अगर प्राइवेट स्कूल्स की सर्वे की जाए तो हो सकता है सीन थोड़ा बेहतर हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि एक सर्वे 2017 में हुई थी जिसमें ये कहा गया कि 3 out of 1 children cannot read simple text like this। एक छोटी लड़की थी, उसका नाम मैना था, उसकी उम्र 7 साल की। आप स्थिति समझिए कि रीडिंग कितना बड़ा चैलेंज है हमारे बच्चों के लिए। आप खुद भी फेस करते होंगे ये चैलेंज, और अगर कोई रीड कर भी लेता है गिरते पड़ते तो मीनिंग समझता है या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल था। नाउ द नेक्स्ट इज रीडिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग? रीडिंग का मतलब है कि वो डिराइव कर सकता है मीनिंग और उसको क्रिटिकली सोच सकता है उसके बारे में। एक छोटी लड़की थी, इसका मतलब उसको समझ में आना चाहिए। उसका नाम मैना था, उसने
शहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोचा। ये 3 सेंटेंसेस अगर है तो 3 सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। और तीसरा क्या है कि बच्चा जब भी रीडिंग करे तो अपने उम्र के हिसाब से रीड करे। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आप क्लास 3 का बच्चा है तो आप 10 की किताबें पढ़ो। कॉम्प्रिहेंशन उसी हिसाब से दी जाती है कि एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्रिहेंशन वो पढ़े और उसको समझे, उसको एनालाइज करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 चीजें आती है रीडिंग में। वो दोनों चीजें क्या है, पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, यानी वो रीड भी करे, कॉम्प्रिहेंड करे, समझे और फ्लुएंसी भी। फ्लुएंसी फॉर एग्जांपल 20 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट, वो बिना अटके पढ़ सकता है, वो रीड कर सकता है। कॉम्प्रिहेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो समझ सके वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट यहां पर है ग्रेड 1 के लिए फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में क्या कहा गया है, क्या अपेक्षा है टीचर्स से, क्या अपेक्षा है स्टूडेंट से, इसको आप देखिए। The child should be able to orally answer simple questions after listening to a short story. हम तो यहाँ स्टोरी का मॉरल भी इसको रटवा देते हैं और बच्चा अगर कहता है तो फिर हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन एनईपी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या कहती है कि हमें रोट लर्निंग से दूर जाना है। We don't have to promote rote learning, rather we should develop competencies in the child. So what is a competency? The child should be able to answer questions after listening to short stories. Identify and write akshars taught in grade 1. The child should be able to identify and write the akshars, and the child should be able to read 2-3 letter words. ये आपका expectations है। वैसे ही grade 2 से भी कुछ expectations है, grade 3 से भी कुछ expectations है कि बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। सिंपल अगर आप मुझसे पूछे कि रीडिंग कॉम्पिटेंसी क्या है, तो रीडिंग कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि चाइल्ड शुड बी एबल टू रीड टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये दोनों इंक्लूडेड है, रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग भी एम्बेडेड है, इंक्लूडेड है। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। नाउ व्हाट आर द 5 स्किल्स ऑफ रीडिंग? निमोनिक्स, अवेयरनेस, फोनिक्स, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए रीडिंग में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स का मतलब समझ में आना चाहिए, फोनिक्स मतलब साउंड समझ में आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंड करे और अवेयर रहे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। ओके, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग रीडिंग कॉम्पिटेंसी? अगर आप किसी बच्चे की रीडिंग कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, उसका सबसे आसान तरीका क्या है? बच्चे को कहिए रीड 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 मोर एंड मोर एंड मोर। तुम जितना रीड करोगे उतनी तुम्हारी रीडिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जिसको हम लोग डिस्लेक्सिया भी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द टीचर्स डू? Please understand, you have to tell the child to read again and again and again. बहुत समय ये लोग बच्चे क्लास में रीडिंग करते हैं और हम टीचर्स इतनी हड़बड़ी में रहते हैं, हम तुरंत बोल देते हैं। No, you have to give the chance to the child to spell the right word, to pronounce the right word. और अगर गलती हुई है तो फिर से रिपीट कराइए। Have patience, ब्रेक कर करके उसको पढ़ने के लिए बोलिए और उससे कहिए नोट्स ले। जैसे मान लीजिए फॉर एक वर्ड में आप अटक गए तो उस वर्ड को हिंदी में लिख लीजिए उसके ऊपर, ताकि अगली बार आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। 4 तरीके की रीडिंग होती है और ये चारों तरीके की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एज के हिसाब से भी और जरूरत के हिसाब से। रीडिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स: स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इसका मतलब समझिए। नाउ व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग का मतलब ये होता है कि इट इज अ टेक्निक that tells you not to read everything yet to understand the meaning. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किमिंग एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, साइंस टीचर्स जितने भी आप जानते होंगे इस वर्ड को। हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं स्किमिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क को घुमा घुमा कर गोल 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 चर्न करने के बाद आप देखेंगे मिल्क के ऊपर उसका मक्खन आ जाता है, यानी जो सबसे बहुमूल्य चीज है उस मिल्क का वो उसके ऊपर तैरने लगता है। आप उसको हटा लीजिए, वो आपके पास आ जाएगा। सेम स्किमिंग का मतलब यही है कि आप एक एक लाइन मत पढ़िए, एक एक वर्ड मत पढ़िए, कॉमा फुल स्टॉप को मत पढ़िए, लेकिन आप जस्ट अपनी नजरें घुमा लीजिए
और जो मेन चीज है, जो मेन जिस्ट है उस पैराग्राफ का या उस पेज का, वो आपके सामने। सो इसका मतलब जब आप स्किमिंग कर रहे हैं, आप अपने स्पीड को थोड़ा कम कीजिए, इंट्रोडक्टरी कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स को पढ़िए, मेन हेडलाइंस को पढ़िए, अनफेमिलियर वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ताकि उस पूरे कहानी का या पूरे पोएम का, उसके पूरे पेज का या जो भी लिखा गया है उसका जिस्ट, उसका समरी आपके सामने हो। यानी अगर हम स्किमिंग करना सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हमें क्या बोलना है कि आपको हड़बड़ाना नहीं। Please don't read every word and every punctuation mark. You don't need to do that. आप सरसरी निगाह से पढ़ो और आराम से पढ़ो, स्पीड आपकी कम होनी चाहिए। किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, मेन हेडलाइंस एंड अनफेमिलियर वर्ड्स। जैसे हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम हेडलाइंस पढ़ते हैं, उसके बाद जो न्यूज, जो हेडलाइन हमें अट्रैक्ट करती है, हम उसको ज्यादा पढ़ते हैं, डिटेल में जाकर पढ़ते हैं। दिस इज नोन एज स्किमिंग। सो अगर स्किमिंग टेक्निक बच्चे सीखेंगे तो बहुत ज्यादा कंटेंट को बहुत जल्दी पढ़ सकेंगे, लाइक एग्जामिनेशंस में या जब वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कैनिंग। आपने सुना भी होगा, कंप्यूटर पे हम स्कैन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, हूबहू स्कैन हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं कलर नहीं आता है, होता है ना स्कैनिंग में। तो व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग इज अ टेक्निक दैट डज नॉट फोकस ऑन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट। अगर हम थोड़ा सा स्कैनिंग में गड़बड़ कर देंगे तो कहीं कहीं कट भी जाता है। जब तक हम परफेक्ट स्कैनिंग नहीं करना चाहते हैं, तब तक आप देखेंगे स्कैनिंग हो रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, थोड़ा साइड से कट गया। तो स्कैन रीडिंग ऐसी होती है। स्कैन रीडिंग का मतलब ये है कि आप एक एवरी वर्ड को स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं? आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट चीजों को गो थ्रू कर रहे हैं। ये स्किमिंग से थोड़ा ज्यादा है। स्किमिंग में हम सिर्फ ओवरऑल पढ़ रहे हैं, स्कैनिंग में हम स्किमिंग से थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, जितने भी हाईलाइट वर्ड्स हैं सब पे ध्यान देते हैं। स्कैन सेपरेटली एवरी क्वेश्चन, जब आप चाहें तो आप वापस जाकर फिर रीरीड कर सकते हैं। दिस इज नोन एज स्कैनिंग। नेक्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव? वर्ड से आपको समझ में आ रहा है। इंटेंसिव मतलब ये कि आप एक एक लाइन, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप को पढ़ेंगे। ये टाइम टेकिंग है, ज्यादा आपका ज्यादा समय लगेगा। यू आर रीडिंग एवरीथिंग दैट इज गिवन आउट देयर, every word, every punctuation mark, every spelling, every sound, everything has been given due importance. And you should understand that this involves sentence to sentence reading rather than word to word reading. और इंटेंसिव रीडिंग जब आप करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी, आप एक एक लाइन को पढ़ेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप ज्यादा समय दें। जैसे अगर हम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, इट इज सजेस्टेड वी डू इंटेंसिव रीडिंग। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन के पहले, एक रात पहले हम रिवीजन करते हैं, वी कैन डू स्किमिंग, वी कैन डू स्कैनिंग। वी डोंट नीड टू रीड लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि हम ऑलरेडी वो चीज पढ़ चुके हैं, डिटेल्स। और उसके बाद द लास्ट टेक्निक इज, प्लीज रिमेंबर, द लास्ट टेक्निक इज एक्सटेंसिव रीडिंग। ना एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए ये जनरली सीनियर क्लासेस में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, जैसे आप याद करो अपने कॉलेज डेज को, हमारे लेक्चरर ने एक टॉपिक हमें पढ़ाया। वो एक टॉपिक हम एक बुक से नहीं पढ़ते थे, हम एक टॉपिक के लिए 5 बुक्स कंसल्ट करते थे, फिर हम अपनी नोट्स बनाते थे। दिस इज नोन एज एक्सटेंसिव रीडिंग। व्हेन यू रीड अ लॉट फॉर लेस, एक छोटे से टॉपिक के लिए आप बहुत सारे बुक्स को कंसल्ट करके पढ़ते हो। तो these are the 4 techniques of reading: skimming, scamming, intensive and extensive reading. ये चारों टेक्निक आपको किसी न किसी तरीके से बच्चों को देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को होमवर्क में दे सकते हैं, you have to do intensive reading of this chapter. Now what is the meaning of intensive reading? कि आप कहीं से भी, बीच से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, child should be able to answer and understand. फिर आप हो सकते हैं टॉपिक दे दें, आप बच्चों को बोले do extensive research on this, reading on this topic and write 5 lines. तो बच्चा 5 किताब पढ़ेगा, गूगल को सर्च करेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, फिर 5 टाइम्स उसके बारे में लिखेगा, क्योंकि वो 5 टाइम्स की किताब में नहीं दिया हुआ है। फिर आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग के लिए कोई नया कॉम्प्रिहेंशन उसको दे सकते हैं, टाइम बाउंड कर दे सकते हैं क्लास में कि तुम्हारे 2 मिनट है, चलो ये पढ़ लो उसको, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आपको बच्चों को आदत दिलानी होगी कि वो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्किमिंग एंड स्कैनिंग कर सके। इससे फायदा क्या होता है? यू नो, मेनी टाइम्स अ चाइल्ड के सामने एक मोटी सी किताब रख दी जाती है, वो डर जाता है, अरे यार इतनी मोटी सी किताब मुझे पढ़नी है।
लेकिन if the child knows the technique of scanning and skimming, the child will not be afraid. उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे स्कैनिंग करनी है इस बुक की, या मुझे स्किमिंग करनी है, मुझे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि आप जो भी पढ़े, बच्चा जो भी पढ़े वो एंजॉय करे, उसको वो चूज करके पढ़े और वैरायटी ऑफ मटेरियल से पढ़ेगा. इसको एक्सटेंसिव रीडिंग है. और दूसरी तरफ ये है, इट मस्ट बी इजी टू रीड, कैन रीड क्वाइट क्विकली, लिटिल डिक्शनरी यूज, एंड इसका लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि बार बार एक एक मुश्किल वर्ड के लिए डिक्शनरी नहीं जाना पड़े, तो बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा. सो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट उसके पास होना चाहिए पढ़ने के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास 5 का बच्चा क्लास 8 का टेक्स्ट पढ़ रहा है, एक एक हर लाइन में 2 बार उसको डिक्शनरी देखना पड़ रहा है. नोबडी विल एंजॉय रीडिंग लाइक दिस. ओके, एंड बैलेंस रीडिंग में आता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, जो भी आप यूज करो. नाउ व्हाट आर द 7 हैबिट्स ऑफ अ गुड रीडर? एक अच्छा रीडर कुछ करता है. जब हम पढ़ते हैं ना, उसी से हम अपनी नोट्स प्रिपेयर करते हैं. तो नोट्स बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं ताकि हमको वापस इंटेंसिव रीडिंग नहीं करना पड़े. सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले हम स्कैनिंग स्किमिंग से काम चला सके. तो व्हेन यू आर टेलिंग द चाइल्ड टू डू रीडिंग, कंप्लीट गुड रीडिंग, प्लीज टीच द चाइल्ड टू विजुअलाइज, to activate the schema, questioning, inferring, determining importance, monitoring for meaning and synthesizing. यानी बच्चे को क्या क्या करना चाहिए? विजुअलाइज. फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अकबर बिरबल की कहानी पढ़ रहा है. अब वो कह रहा है अकबर अपने कोर्ट में आया, तो बच्चा विजुअलाइज करे, अकबर उसने ऐसी पगड़ी पहनी होगी, ऐसा तलवार लिया होगा, ऐसे कपड़े पहने होंगे, उसके कोर्ट में ऐसा होगा सिंहासन इस कलर का. विजुअलाइज. जितना आपका बच्चा विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, उतना वंडरफुल रीडर, उतना वंडरफुल राइटर भी होगा, बिकॉज विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिवेटिंग स्कीमा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमा? आफ्टर द अदर, आफ्टर द अदर, आफ्टर द अदर, 1 2 3 4, ये 4 चीजें. क्वेश्चन. व्हेन द चाइल्ड इज रीडिंग, ask the child to write questions, ask questions, why this happened, why this did not happen, ताकि वो हमेशा माइंड से एक्टिव रहे. He's just not only reading, the child is active also. Child is comprehending, child is asking questions, यानी child is mentally active. Inferring यानी conclusions. और सबसे इंपॉर्टेंट, मीनिंग को समझे और चीजों को सिंथेसाइज मतलब चीजों को जोड़े. अच्छा, अकबर का साथ सीन 1 में ये हुआ, फिर सीन 1 से ऐसे होने के बाद ऐसा हुआ, फिर सीन 3 में ये हुआ, फिर सीन 4 में कंक्लूजन हुआ, जो उसने सीन 1 में कहा था ऐसा सीन 4 में इसका रिजल्ट आया. So you are actually, what are you doing? You're joining the parts, synthesizing. ठीक है? You have to understand this very well. Next, what is a best reading strategy? Best reading strategy means use your prior knowledge. Whenever you sit to read something, आपके पास already उस चीज के बारे में कुछ तो knowledge है. चाहे आपको स्कूल से मिला हो या गूगल से मिला हो या दोस्तों से मिला हो, कुछ knowledge है. उसको प्लीज अपने दिमाग में प्रेडिक्ट करना सीख. अच्छा, ये लड़का आया उस सीन में और उसकी मम्मी वहां मिली, अब ये होगा. जैसे मूवी देखते तो कैसे कहते हैं, अब दोनों की शादी हो जाएगी, विसेन अब हीरो आएगा, अब उसको गुंडे को मारेगा. ऐसे प्रेडिक्शन से क्या होता है? व्हेन यू आर रीडिंग, यू शुड आल्सो ट्राई टू प्रेडिक्ट, जस्ट लाइक वाचिंग अ मूवी. इससे क्या फायदा होगा कि बच्चा रीडिंग में इन्वॉल्व रहे. बहुत समय आप देखते होंगे आपकी लाइब्रेरी में, आपके घर में आप देखते होंगे अपने बच्चों को किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है. क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उसमें इंट्रेस्ट नहीं है. दे आर जस्ट रीडिंग, दे आर मेंटली समवेयर एल्स. सो इफ यू वांट द चाइल्ड टू बी मेंटली प्रेजेंट व्हाइल रीडिंग, द चाइल्ड शुड बी predicting, the child should be asking questions to himself. पढ़ते समय अपने आप से questions पूछे, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ. समराइजेशन करे, इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करे, विजुअलाइज करे, और फिर दोबारा उसको बोले, अच्छा ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा, अच्छा नाउ आई अंडरस्टूड क्या हुआ. So these are the strategies of active reading. Otherwise आपका बच्चा क्या हो जाएगा ना, पैसिव रीडर हो जाएगा. पैसिव रीडर मतलब वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको कुछ ध्यान में नहीं जा रहा. ओके, देखिए मैं कुछ टेक्निक्स आपको दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड यू कैन टेल योर चिल्ड्रन टू यूज दीज टेक्निक्स व्हाइल दे आर रीडिंग. एक बहुत फेमस स्टोरी है, शायद क्लास 3 के इंग्लिश में, गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बेयर्स. बहुत अच्छी स्टोरी है, 3-4 पेज की स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी को पढ़ने के बाद इफ यू टीच द चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर अ स्टोरी मैप, एक स्टोरी बच्चे ने पढ़ी, फिर उसका स्टोरी मैप बच्चा कैसे बनाएगा. सेटिंग कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, आउटकम, थीम, ये कुछ चीजें. आप ये हेडिंग्स चेंज भी कर सकते हैं. आप सिर्फ बच्चे को हेडिंग दे दो एंड देन यू गिव देम द होमवर्क, डू इंटेंसिव रीडिंग ऑफ गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बेयर्स एंड फिल ऑन दीज ब्लॉक्स. क्या ब्लॉक्स में है?
क्यों, सेटिंग मतलब कहाँ हो रहा है स्टोरी, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, आउटकम क्या हुआ, थीम क्या है. Now the child will read intensively. The child will read Goldilocks and the Three Bears और बच्चा क्या करेगा, ये सब भर के लाएगा. तो यानी उसकी जो 3, 4, 5 पेज की जो स्टोरी थी उसको आपने 1 पेज में समराइज कर दी. अब एग्जाम के समय आप बच्चे से कह सकते हैं डोंट रीड द बुक, नाउ रीड द स्टोरी मैप एंड कम फॉर योर एग्जाम्स, बिकॉज एक पेज में वो पूरा स्टोरी है. So when you're reading side by side, you're preparing the story map also. Another beautiful way is to prepare a KWL chart. Now what is a KWL chart? What I know, what I want to know, what I learned. अभी मैंने आपको बताया था ना, the pretext आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ भी नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होगा. So ये KWL chart, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स ही पढ़ रहा है, उसमें बच्चा KWL आप बना दीजिए, बच्चे को बोलिए इसको फिलअप करो. गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स के बारे में क्या वो कुछ जानता है ऑलरेडी? नहीं जानता तो नहीं लिखेगा, ब्लैंक रहेगा. वो जानना क्या चाहता है, गोल्डीलॉक्स कौन थी, थ्री बेयर्स ने उसके साथ क्या किया, इसका एंड कैसा है. फॉर एग्जाम्पल बच्चा 3 चीज जानना चाहता है, तो स्टोरी को पढ़ने के बाद उसने क्या क्या जाना, क्या क्या सीखा, ये आप KWL चार्ट, ये साइंस, सोशल साइंस, हर लैंग्वेज में, हर सब्जेक्ट में दिस चार्ट वर्क्स वंडर्स. अगर आप अपने बच्चे को एक बार KWL चार्ट बनाना सिखा देंगे, आई एम श्योर आपका बच्चा जिंदगी भर आपका आभारी रहेगा, बिकॉज दिस इज रियली समथिंग गुड. दिस इज नॉट एज अ फ्लो चार्ट. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ सोशल साइंस टीचर, यू आर टीचिंग द चाइल्ड सिटीज ऑफ लेक मिशिगन. कौन कौन सी सिटीज है ये, इस सिटी के अंदर कौन कौन से छोटे टाउन्स हैं, कौन कौन से शहर हैं, ये लिख दिया. तो दिस अ फ्लो चार्ट कि मेरा पूरा स्टोरी कैसे फ्लो कर रहा है टिल द एंड. टीच दिस चिल्ड्रन दैट व्हेन यू आर रीडिंग द स्टोरी, मे प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट आल्सो. तो बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, साथ साथ ये नोट्स भी बना रहा है. सो ये आप इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि व्हाइल रीडिंग हाउ कैन यू प्रिपेयर नोट्स फॉर योरसेल्फ. This is another way, tabular notes. For example, बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, सिल्वर में क्या क्या रहता है, गोल्ड में क्या क्या होता है, प्लैटिनम में क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल तो बच्चा ये टेबल बना रहा है, उसको याद. सो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया, समझा कि हम स्टोरी मैप बना सकते हैं while reading, we can prepare KWL charts while reading, we can prepare flow charts while reading, we can prepare tables while reading, and you can draw schematic diagrams. स्कीमा की बात मैं कर रही थी, schematic. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने पढ़ा, 2 पेज में लिखा हुआ है बुक में कि व्हाट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. बच्चे ने छोटा सा एक ड्राइंग में उसको समराइज कर दिया कि पहले एग्स होते हैं, फिर टैडपोल, फिर फ्रॉगलेट, फिर अडल्ट फ्रॉग. तो ये क्या कर रहा है बच्चा, ड्राइंग स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा है. So while reading, some children who are good in drawing can also make schematic drawings. कि भाई मेरा पूरे चैप्टर गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स का भी स्कीमेटिक ड्राइंग बन सकता है. ये जरूरी नहीं कि अगर आप गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स करने को कर रहे हैं बच्चे को, तो वो सिर्फ स्टोरी मैप ही बना सकता है. नहीं, गोल्डीलॉक्स एंड थ्री बेयर्स के लिए भी बच्चा आपका स्कीमेटिक डायग्राम बना सकता है. सो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं साथ ही साथ हम नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये नोट्स हम एग्जाम के पहले पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी मेरा पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा. यू कैन अट्रैक्ट चिल्ड्रन लाइक दिस. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लो चार्ट. या फिर कंप्यूटर टीचर्स इसको अच्छे से समझ रहे होंगे. यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स लाइक दिस व्हाइल यू आर रीडिंग समथिंग. यानी सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के उसको लिखना भी. ओके, व्हिच आवर पेरेंट्स यूज्ड टू से. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे ने पढ़ाई कर ली, बच्चे ने नोट्स बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी एज अ टीचर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बच्चे मेरे क्लास में ऐसे हैं जिनमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो इंप्रूव नहीं कर रहे हैं. तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम बना सकते हैं रीडिंग इंप्रूवमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान. इट्स अ वेरी कॉमन प्लान जिसको हम लोग कहते हैं रिम. यानी यू हैव टू मेक अ प्लान कि अगले 10 दिन में, अगले 20 दिन में, अगले 30 दिन में मुझे मेरे बच्चों की रीडिंग इंप्रूवमेंट करवानी है. कैसे इंप्रूव करूंगी, एक प्लान बनाओ, उसको मॉनिटर भी करो. मॉनिटर करने के बाद आपको पता चल रहा है कि नहीं, कुछ बच्चे तो इंप्रूव कर गए लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे इंप्रूव. सो व्हाट यू हैव टू मेक, यू हैव टू मेक एन इंप्रूवमेंट प्लान, इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट प्लान. पहले जो आपका रिम्प है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल. लेकिन कॉमन प्लान बनाने के बाद 2-4 बच्चे छूट जाते हैं पीछे, उनके लिए आपको इंडिविजुअल प्लान बनाना है एंड यू हैव टू इंप्रूव. अगर आप साल के शुरू में सारे बच्चों का नाम लिख लें, एक जनरल प्लान बनाएं, उस पर वर्क करें, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस प्लान को मॉनिटर करें, और अगर आपको पता चलता है मेरे कुछ बच्चे नीचे रह गए, नहीं इंप्रूव किए, उनके लिए इंडिविजुअल प्लान बनाएं. आई एम श्योर जब तक ये अगला सेशन हमारा 24-25 खत्म होगा, आपके कक्षा के सारे बच्चे दे विल बी great readers
और यही तो हम चाहते हैं एज टीचर्स। जब मेरा बच्चा रीड करना सीख जाएगा, कॉम्प्रिहेंड करना सीख जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। द चाइल्ड विल grow without your direct support also. Otherwise, all the time, teachers, you have to spoon feed them, write the answers for them, read the answers for them, etc., etc. When students are actively reading and applying multiple reading strategies, they are able to understand the text at a deeper level. Are you understanding what I'm trying to say? So please understand this, कि जब तक मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक मेरा बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करेगा चीजों को और अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे रीडिंग स्ट्रैटेजीज देना चाहती हूँ। नंबर 1 इज प्री रीडिंग। जस्ट अ मिनट। What is the meaning of pre-reading? पढ़ने के पहले बच्चे को कहिए कि don't just pick up any book and start reading. Pick up a book that you really want to read. And first thing is be prepared. Highlight the first 2 or the last 2 paragraphs. And then आप जो important चीज आप लिखना चाहते हैं उसमें लिखो. During reading, please highlight unknown words. उसकी meaning को खोजो, उसके मतलब को समझो, main idea को समझो. And post reading, please prepare either a KWL chart or a story map or a flow chart or a schematic diagram and conclude your reading. या मैंने ये पढ़ा और इसका मतलब ये, so that your reading is complete. Now, I'll give you some reading improvement habits. If you can develop these habits in your children, then their reading will also improve a lot. Now, what are these? Number 1. Set aside time to read each day. रोज, it's a habit, वो डेवलप करनी पड़ती है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में भी नहीं होगा, मिनिमम महीना 2 महीना समय चाहिए। आप बच्चे को समझाइए कि बेटा 5 मिनट आप रोज पढ़ोगे, बुक नहीं, कोर्स बुक नहीं, समथिंग डिफरेंट। एक फिक्स टाइम कर लो कि मैं इसी समय रोज पढ़े। सेट रीडिंग गोल्स, मैं 2 पेज पढ़ूंगा, मैं 3 पेज पढ़ूंगी, मैं 4 पेज पढ़ूंगी। सेट रीडिंग गोल्स, सिंपल स्मॉल गोल्स, डोंट मेक बिग गोल्स फॉर योरसेल्फ। प्रीव्यू द टेक्स्ट यू रीड, पहले पढ़ने के पहले एक बार गो थ्रू कर, अच्छा मुझे आज ये पढ़ना है, चलो ठीक है। क्यों पढ़ना है? डिटरमाइन द पर्पस, व्हाई यू वांट टू रीड। यू शुड हैव अ पर्पस इन योर माइंड। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो ऐसी आपकी बात नहीं मानेंगे। उनको समझना होगा कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं। व्हाट इज द पर्पस? डू आई वांट टू इंप्रूव माय रीडिंग स्किल्स? डू आई वांट टू इंप्रूव माय कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स? डू आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद बुक्स? डू आई वांट ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन माय वोकैबुलरी? क्यों मैं पढ़ना चाहता हूं? Apply reading strategies, यानी skimming, scanning, intensive and extensive. Take notes while you read. Notes मैंने आपको बताया, notes का मतलब से words को लिखना नहीं होता। Notes का मतलब write a story, draw a diagram, make a flow chart, whatever. Apply what you read by summarizing. You read 2 pages today, write a summary. You read 5 pages, prepare a summary. You read 1 paragraph, prepare a summary. So that you're reading, comprehending, vocabulary, schema, writing also. You are taking care of your writing also side by side. Okay. So when you're reading, please predict. अच्छा अब हीरो आएगा, उसको पीटेगा। आप स्टोरी में रहो, स्टोरी से बाहर मत आ जाओ कि मैम ने कहा पढ़ने के लिए इसलिए मैं 2 पेज रोज पढ़ूंगा। नो, बी इन द स्टोरी, प्रेडिक्ट। अच्छा ये होने वाला है, वो होने वाला है। विजुअलाइज, इमेजिन, क्वेश्चन, कनेक्ट। ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आइडेंटिफाई, कंक्लूड, इन्फर मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करो और इवैल्यूएट करो कि मैं तो सोच रही थी स्टोरी काइंड ऐसा होगा, हाँ लेकिन स्टोरी काइंड ऐसा हुआ। मेरे सोचने में और राइटर के सोचने में क्या फर्क है? So predict, visualize, question, connect, identify, infer and evaluate. This is very, very important as far as reading is concerned. These are reading techniques. Okay. Now, how can you promote reading habits in students? Reading is a habit और उस habit को develop करना पड़ता है, ठीक है? So you can develop reading habits in students by developing class libraries. आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्लास टीचर हैं, आप सब्जेक्ट टीचर हैं, क्या अपने बच्चों से रिलेटेड ग्रेड अप्रोप्रिएट कुछ कलरफुल, खूबसूरत, इंटरेस्टिंग बुक्स अपने क्लास के किसी कॉर्नर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या रख सकते हैं? आपको सोचना हो। अगर आप वाकई चाहते हैं आपके बच्चे में रीडिंग हैबिट डेवलप हो, तो उसके एकदम उसके पास, उसके अड़ोस पड़ोस में कुछ कलरफुल, सुंदर सुंदर किताबें रखी कि जब इच्छा हो किताब खींचे और पढ़े। ठीक है। नेक्स्ट,
लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स, आप अपने लाइब्रेरी टीचर के साथ प्लीज कनेक्ट होइए और उनसे कहिए मैम इस वीक मेरे बच्चे आएंगे आपकी लाइब्रेरी में, वाटर से रिलेटेड जितनी किताबें उनको दीजिए, मैंने उनको वाटर पे प्रोजेक्ट दिया है. Children will develop the habit of reading books. Okay, just a minute. Just a minute. Hello. Hmm. 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 Mina, get. Okay. Okay. You understand this? So give them projects which are related to, which can develop their reading habits. Next is conduct book seminar. Gate लगाओ lift का. Conduct book seminar. Now what is the meaning of book seminar? आप अपने बच्चों से बात करें, आप कहेंगे सारे बच्चे क्या कहते हैं कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो. बच्चा कहे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं फैशन डिजाइनर बनूंगा, मैं मॉडल बनूंगा. लेकिन एक भी बच्चा कभी आता है कि मैम सर मैं बड़ा होकर राइटर बनूं, ऑथर बनूं. क्यों? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं कि दिस इज आल्सो प्रोफेशन. बच्चे को ये नहीं कि ऑथर बन के भी मैं जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता हूँ, मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, बहुत फेमस बन सकता हूँ. तो प्लीज एज अ टीचर ये आपका फर्ज है कि आप लिखने के प्रोफेशन को ग्लैमराइज करिए. आप बच्चों को ये बताइए कि बेटा लिख कर भी तुम एक बड़े इंसान बन सकते हो, पॉपुलर इंसान बन सकते हो, पैसे कमा सकते हो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो हॉलीडे प्रोजेक्ट्स देते हैं माय डियर टीचर्स, फॉर एग्जांपल समर हॉलीडे, विंटर हॉलीडे, पूजा हॉलीडे वेकेशन प्रोजेक्ट्स, मेक श्योर आप डोंट गिव क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द बुक. You must give some questions which should force them to go to the library, pick up a book, read and find out the content. These kind of questions, answer to the question should not be available on the Google or should not be available in the course book. So deliberately you have to design some projects which force the children to go to the library and read. Conduct book fairs in your school. जैसे आप खाने का मेला लगाते हैं तो बच्चे जाके खरीद के खाते हैं ना, बहुत कुछ टक शॉप लगाते हैं बच्चे खाते हैं. तो आप बुक फेयर लगाओ ना अपने स्कूल में, जहां बच्चे जाकर बुक्स खरीदे. उनके आसपास जो नजर आएगा उनको उसी की आदत हो जाएगी. अगर कोई ऐसा बच्चा आपके स्कूल में जिसके घर में कभी कभी नॉनवेज नहीं बना तो उसको नॉनवेज की आदत नहीं होती. वैसे दूसरी तरफ आप देखो एक बच्चा जिसके घर में रोज नॉनवेज बनता है वो रोज नॉनवेज खाता है, बात आदत की. सिमिलरली अगर आपके बच्चों के इर्द गिर्द बहुत सारी बुक्स 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 रहे, इंटरेस्टिंग बुक्स, अच्छी किताबें, उनकी मर्जी के हिसाब से किताबें, तो वो किताबें भी पढ़ेंगे. सो ऑर्गेनाइज बुक फेयर्स इन योर स्कूल. ओके, ऑर्गेनाइज अ बुक वीक. फॉर एग्जांपल 10 किताबें आप बच्चों को कहिए रीड एनी वन बुक और उसके कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो, उस कैरेक्टर के बारे में 4 लाइंस आकर बोलो लाइब्रेरी पीरियड में, असेंबली में. I'm a लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैंने रेड रेड ड्रेस पहना, मैं कुछ बोलूंगी. मैं भगत सिंह हूँ, मैंने भगत सिंह पे किताब पढ़ी, उनकी कोई लाइन बोली. मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं फलाना हूँ, कुछ भी. मतलब चिल्ड्रन शुड बी एब्सॉर्ब्ड इन बुक्स. किताबें एक चलती फिरती दुनिया होनी चाहिए उनके लिए. किताबें से बोरिंग फैक्ट्स की दुनिया नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी वाइब्रेंट लाइवली वर्ल्ड फॉर द चाइल्ड. You must have a book club in your school, like you have Heritage Club, Friday Club, Guitar Club, ये club, वो club, Eco Club. You have a book club जहाँ बुक से रिलेटेड काम होता हो. कोई बुक लिख भी सकता है, कोई बुक पब्लिश कर सकता है, कोई बुक्स के बारे में बुक पढ़ के ड्रामा कर सकता है, कोई किताब पढ़ सकता है, कोई स्टोरी टेलिंग कर सकता है. So many things can be done. So you should have a book club also in your school. Like a healthy eating regimen, we can apply the judgment of training our students on reading strategies. Little. Remember this word is very important. Little and often. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप रोज चाउमीन, छोले भटूरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें खाते हैं और अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाता है, आपका लिवर फैटी हो जाता है, डॉक्टर आपसे कहता है आप ये सब कुछ नहीं, तेल मसाला कुछ नहीं खा सकते, आपकी जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी. लेकिन वही अगर आप थोड़ा थोड़ा हेल्दी हैबिट रोज अपने अंदर डेवलप करें, पहले पहले चाय में चीनी पीना छोड़ दें, फिर आप मिठाई खाना छोड़ दें, फिर आप चीनी छोड़ दें, धीरे 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 आप स्टेप बाय स्टेप एक बड़े गोल की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं. Similarly, training the children to read, making them familiar with the reading strategies is also small step. Are you understanding? ये small steps आप कैसे लेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा और छोटा छोटा steps लीजिए ताकि बच्चे मेरे ज्यादा खुश हों, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. So please remember,
the 4 reading strategies. जब आप रीडिंग कर रहे हो बच्चे को नोट्स बनाने बोले, जब आप होमवर्क देंगे नए सेशन में, सेशन आपका शुरू होने वाला है, प्लीज डोंट गिव होमवर्क लाइक दिस, रीड चैप्टर 1, नो, do intensive reading of chapter 1, skim chapter 1, scan chapter 1, answer these 5 questions after scanning chapter 1. So you know, ये टर्म्स आपके बच्चों के लिए familiar होता जाएगा, बच्चे उन टर्म्स को समझते जाएंगे और बच्चे धीरे 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 गुड रीडिंग हैबिट्स की तरफ अग्रसर होंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू मोटिवेट देम. कोई अच्छा पढ़ रहा है उसको एक छोटा सा बैच दे दो, उसका एक पेपर बैच बनाकर दे दो, उसमें पैसे नहीं लगते, लेकिन वो मोटिवेशन लेवल को हाई करता है बच्चे को. बच्चा खुश होता है कि बिकॉज मैंने पढ़ाई की मुझे ये चीज मिली, बिकॉज मैं अच्छा रीडर हूं मुझे ये मिला, बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड, बेस्ट रीडर अवार्ड, बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड. सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. तो आपको सोचते रहना पड़ेगा, एक्टिविटीज के थ्रू रीडिंग हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा. अगर आप सिर्फ बच्चे को रीड करो, नहीं रीड करेगा, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड. I hope it is clear to all of you. Reading, how can you develop reading habits in students? Okay. Now, if you have any questions, please ask. Questions हो तो please पूछिए. I want to answer some of your questions also. इसीलिए मैं 10 मिनट पहले खत्म करती हूँ, ये सोच करके आपको कुछ questions पूछने होंगे. So please questions पूछिए. And I'll be very happy to answer. रोज लिंक यही रहेगा, लिंक चेंज नहीं होगा. Please try to join 2 minutes before, okay, the session. Just one small announcement. Tomorrow we have a session from 9 to 10. Tomorrow we have a session from 9 to 10. If you all permit me, can I take the session from 11 o'clock, 11 to 12? Ma'am, you can WhatsApp me in my personal number. If 11 to 12 suits you people, then tomorrow also I'll try to take the session from 11 to 12 tomorrow morning. And then tomorrow evening 6:30 to 7:30 as usual. Well, that's all from my side. Thank you so much. Dear educators, if you have any question, go ahead. I'm unmuting you. I am unmuting you. If you have any questions, आप अपने आप को unmute करके मुझसे पूछ सकते हैं. मैंने unmute कर दिया आप लोगों को. आप खुद से अपने आप को unmute करके मुझसे questions पूछ सकते हैं. Anyone? No questions? Okay. Okay then. Thank you so much. See you tomorrow. Please confirm me the timing on my WhatsApp now. Thank you. Thank you everybody. Thank you.